Good morning, students. I am Sushil Kumar Jain. Now, today I am from the modern city of India, and that is the very good and very charming place of South India, Bangalore, the capital city of Karnataka. And I am here. Okay, so that is the lesson for you. Okay, today is the time to and day to pay homage to the great mathematician of India, Mr. Ramanujan. आज रामानुजन का दिन है। मैं मैथमेटिक्स में आपके प्रोबेबिलिटी वाले जो आपका मेरा वीडियो लेसन जो चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और दैट इज़ द एग्जाम्पल 7 फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। किस बच्चों के स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के ऑप्टेन मार्क्स जो प्राप्तांक है उनका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, और ये यूनिट टेस्ट के मार्क्स है। टेबल 15.9 is shown here. Unit test, the first row and column first, second, third, fourth and fifth. Okay, the unit test first and percentage of marks obtained. फर्स्ट टेस्ट के जो मार्क्स ऑब्टेन थे 69, second test 71, third test 73, fourth test 68 and fifth test 74. Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. That means from this table, from this observation, from this data, we have to conclude that the probability the student will score 70% marks in a unit test. हमें इसके आधार पे बताना है, हमको प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि वो जो स्टूडेंट है वो अपने यूनिट टेस्ट में 70% मार्क्स गेन कर लेगा। तो हम चलते हैं आगे, क्या कहता है इसका सॉल्यूशन। दैट इज़ द सॉल्यूशन। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड इन 5। ओके, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट एंड फिफ्थ टेस्ट। ओके, these are the number of test 5. Total number of unit tests are 5. The number of unit tests in which the students obtain more than 70% marks. Now you have to observe, you have to determine, you have to think about that matter, how many times the student got the more than 70% of the marks. ओके, हमको उस टेबल से ये पता लगाना है कि 70% से ऊपर मार्क्स वो कितने टेस्ट में लेके आया है। तो द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70% मार्क्स इज 3। वो जो था वो 3 टेस्ट जो थे उसमें वो 70% से ऊपर मार्क्स लेके आया है। सो द probability to get more than 70% marks of this student equal to the number of favorable outcomes divided by the number of total observations or conditions. So that is the above 70% marks 3 number. So number of outcomes 3, chances 3, total number of chances 5. So 3 by 5 is the probability to get 70%, above 70% marks. So that is the 0.6 is the probability of to get above 70% marks of that student. सीधा सा है कि जो टोटल जो फेवरेबल चांस बन रहे थे वो 3 हैं, सॉरी टोटल फेवरेबल चांस बन रहे थे 3, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस है वो 5 है। 5 टेस्ट हुए, 5 में से 3 टेस्ट में वो 70% से ऊपर नंबर लाया है, तो वो हमारे फेवरेबल चांस हो गए, और टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 5। तो 3 by 5 इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट मोर देन 70% मार्क्स इन द यूनिट टेस्ट। सो ये हो गया आपका एक बहुत सिंपल सा, बहुत आसानी से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए कि इफ़ यू वांट टू हैव जस्ट लाइक द मोर देन 85%, इफ़ यू गॉट द फर्स्ट टेस्ट 80 नंबर, सेकंड टेस्ट 79 नंबर, थर्ड टेस्ट 84 नंबर, फोर्थ नंबर 85 नंबर marks, or you obtain the marks 85. Okay, and in fifth test you will get the only 60 marks. So now
to find the probability to get more than 80% marks of you. So हमने कहा कि 1, 2, 3, 5 टेस्ट है, उसमें आप 2 टाइम्स 80 एंड 85 मार्क्स लेकर आए हैं। टोटल नंबर आपके हो गए 5 टेस्ट के। तो आपकी जो 80% मार्क्स ऑब्टेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो सीधा सा है कि जब आप हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप 2 टाइम्स जो है अबाउ 80 मार्क्स लेके आए हैं और 5 टाइम्स जो है टोटल है, तो 2/5 जो है आपकी अबाउ 80% मार्क्स ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। Now you go through these examples, and here is the more problems related with the probability here. Okay, and the exercise 15.1, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक जो क्रिकेटर है वो जब खेलती है तो एक मैच में वो 30 बाल्स पे 6 टाइम्स बाउंड्री लगा देती है। हमको प्रोबेबिलिटी ये पता करना है कि वो उसने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। तो अब 30 बाल्स है और 6 टाइम्स वो लगा देती है, तो अब नहीं निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए बहुत आसान सा मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1. यू हैव टू रिमेंबर, in my previous lesson I have told about, I have explained you to that means the probability lies between 0 to 1 and why and how. Because if any kind of the event will happen or not happen. देखिए 2 एक्सट्रीम कंडीशन जो मैं आपको बता देता हूँ, या तो 100% इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और अगर नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0. सो प्रोबेबिलिटी का जो भी सम आप करोगे, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स में या आप आपकी एग्जाम में, टेस्ट में, एनीवेयर एल्स, आपका आंसर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका आंसर आ रहा 1.5, 1.2, 1.3 या 1.001, so that was your problem solution of the problem always completely wrong. ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ये मैंने आपको बता भी दिया कि आप जो सम कर रहे हो उस सम में आप कहाँ गलत हो रहे हो। यहीं से पता लगा लो कि मेरा जो कैलकुलेशन है या मेरा जो तरीका है या जो मैं स्टेप्स जो कर रहा हूँ या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या डिटर्मिनेशन जो है फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन निकालने का, तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको ये बोला कि 0 to 1 में प्रोबेबिलिटी क्या करती है, रेस्ट करती है। तो सीधा सा है कि जब 0 to 1 में रेस्ट करती है, तो यहाँ जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम दी है एक्सरसाइज 15.1 का, इन अ क्रिकेट मैच, एक जो वुमन क्रिकेटर है वो 30 बॉल्स में 6 टाइम्स बाउंड्री लगा देती है ना। अब बाउंड्री जब वो 6 टाइम्स में लगा देती है तो सबसे पहली बात है कि मैं आपसे पूछता हूं कि उसके जो प्रोबेबिलिटी है कि वो हर बॉल पे अगर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हर बॉल पे एक 6 बाउंड्री लगा देगी। हम पॉजिटिवली चल रहे हैं कि वो लगा रही है, तो ये 6/30 हो गया, दैट इज़ द 1/5। 1/5 इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट इच बॉल। वो क्या करेगी, वो बाउंड्री लगा देगी, है ना। अब हमारे पास 1/5 तो आ गया प्रोबेबिलिटी होने की, लगाने की। अब उसने क्या पूछा है हमसे, नहीं लगाने की। तो हम तो सीधा सा है ना, बेसिक 3rd 4th स्टैंडर्ड का हम मैथमेटिक्स यूज़ कर लेते हैं। हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अगर वो हर बॉल पे लगाती है बाउंड्री, हर बॉल पे लगाती है, तो 30 बॉल में से 30 बॉल पे लगाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 कब होगी, जब 30 टाइम उसने 30 बॉल पे 30 बाउंड्रीज लगा दी, तो 30/30 = 1। 30/30 = 1, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो हर बॉल पे बाउंड्री लगाएगी।
और हर बाल पे बाउंड्री लगाएगी। तो अब वो ये पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि उसके प्रोबेबिलिटी उसके बाउंड्री नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है ना भाई, जो प्रोबेबिलिटी आपकी अगर वो 30 बाल में लगाती है ना, 30 बाल में हर बाल पे एक बाउंड्री लगा देती है, तो नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1 = 0। मतलब हर बाल पे लगा रही है ना, तो हर बाल पे अगर वो लगा रही है तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई, तो नहीं लगाने की तो बात खत्म हो गई। पर यहाँ उसने ये कहा है, हमको प्रॉब्लम में जो दिया है वो 6 टाइम्स वो बाउंड्री लगाती है 30 बाल में से, 30 बाल में से 6 टाइम्स वो बाउंड्री लगाती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि 6/30, सो 1/5, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो मैं आपसे वही बात कर रहा था कि 6/30 जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी 1/5 हुई, 30 बाल में से 6 टाइम्स बाउंड्री लगाने की। तो अब सीधा सा है कि 1 माइनस जो 100% प्रोबेबिलिटी वो 1 हो गई, 1 - 1/5 = प्रोबेबिलिटी नहीं लगाने की, बाउंड्रीज नहीं लगाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो 4/5 सीधा सा है, कितना होगा, 1 - 1/5 = 4/5। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ है ना, जो मैंने आंसर निकाला है उसको चेक कैसे किया जाए। 1/5 + 4/5, डेनोमिनेटर आर सेम, सो 1 + 4 = 5, 5/5 = 1। सो दैट इज द नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है उसी के उसको निकालने के लिए जो हम